हाँ जी, कैसे हो? नमस्ते सर। जी नमस्ते। कैसे हैं सर आप? फाइन। और यू? जी व्हाट्सअप। मैं भी अच्छा हूँ सर। Hello. Hello. Am I audible? हेलो हेलो। Good morning, Dr. Sir, Amatharu sir. जी Good morning, all थैंक the यू। fellow doctors. Am I audible? हाँ जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। Hello. जी Good morning, sir. Good morning, all the fellow doctors. First of all, I request all the fellow doctors to please switch off your cameras and the mics because it creates a lot of disturbance. I have the privilege today to welcome Dr. H.S. Matharu sir on behalf of all of us. He's a very senior and renowned practitioner from Dhuri, Punjab. He has been direct disciple of Dr. Emil Sehgal and could learn the mind technique in his close association. He has been practicing for last 45 years. His dedication, his commitment, and his humility makes us bow down to him. He has an ocean full of experience of handling acute, chronic, as well as emergency cases with remarkable results. And today we'll be having the privilege to view a live case from him. So please be there for the surprise. He is also an expert in the bachelor remedies. Through his sharings and teachings, he has given us also the confidence to take up any kind of case in our clinics. Last but not the least, I also thank Dr. Rashi, who has been the lead soldier to bring us the diamond Dr. H.S. Matharu sir, so that all of us can shine. Today, we are honored to have a few dignitaries with us as well. Dr. A.R. Mehtre from Pune. Dr. Mehtre, are you there? Dr. Rajshri Bongale from Pune. Good morning, sir. Good morning to everyone. It's nice Good meeting morning, once again. Thank you, madam. Dr. Vinay Gupta from Bhagalpur, Bihar. Yes, namaskar. Good morning. Good morning, sir. Dr. Gopal Pandit from Bhagalpur, Bihar. Pandit. जी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Dr. Seema Yadav from Jaipur. Dr. Seema, are you there? She'll be joining us. Dr. Vasundhara from Solan. Dr. Avinash Gupta from Gujarat. Dr. Anita Yadav from Delhi. Good morning. जी Good morning, Dr. Anita. Dr. Poonam Batra from Aligarh. And the most special dignitary, Dr. Sushil Vats from Delhi. Today, he'll be making a few, सबको नमस्कार। giving us a few very important information. Good morning, sir.
will be sharing a few important information with us, which will be beneficial to all of us. So I invite Dr. Sushil Vats to share the information with us. Dr. Vats, please. Good morning, friends. Good morning, Dr. Matharu. Good morning, Dr. Rashi Rastogi, for giving me this opportunity to share with you information regarding our seminar in Delhi. 14 और 15 दिसंबर को 2024 we are going to organize our first seminar in the memory of Dr. Anirudh Verma. I hope most of you must be knowing about him. Dr. Anirudh Verma was from Lucknow and was a member of Central Council of Homeopathy for almost 25 years. He was also well known in homeopathy fraternity for organizing annual homeopathic seminars. In fact, he organized almost 35 seminars before we lost him in COVID. As you know, we lost so many senior colleagues and other homeopathic doctors. So it came to our minds, why not to continue this great efforts of Dr. Anirudh Verma to organize National Homeopathic Seminar every year. So it took us 2 years to make a decision, which we did this year. Me, along with Dr. A.K. Arun and few other colleagues, Dr. Sanjay Saini, Dr. Govind Rathore, Dr. Rishabh Gupta. So we decided to organize this International Homeopathic Seminar in Delhi on 14th and 15th December 2024. This, in a way, is also our homage to two other homeopaths also, Dr. Praful Vijayakar and Dr. Mavi from Jalandhar, with whom I have a very long association of organizing national seminars of predictive of Dr. Praful Vijayakar in various parts of the country. So I thought we lost 3 good friends in last 3-4 years. So why not to come together to continue their great work and also to give credit to their efforts they made during their lifetime, taking up homeopathy to new heights. We will have this seminar in the NDMC Convention Center, which is centrally located in New Delhi, opposite Jantar Mantar in Connaught Place area. To tell you about the speakers, we have Dr. Amrish Vijayakar, who will be speaking one day on 14th. Then second day we have also Dr. Dinesh Chauhan from Other Song Academy. And we have also requested Dr. Matharu to give us the valedictory session about his research and his application of mind method in acute emergencies and life-threatening disease, life-threatening conditions. I request you all present here to join us to make this seminar successful, to make this seminar a very important affair, as we will be trying to have it annually in the calendar of homeopathy in India. We are also likely to have some delegates from outside India also. Already some 10-15 delegates outside India have registered. We already have a good response in terms of having more than 100 registrations already. Our capacity is 300 total. I have already got the appointment from Mr. Harsh Malhotra, who is the Central State Minister for Corporate Affairs and Road Transport, to come to this. We are also approaching the Ayush Minister and likely to get his consent also to inaugurate this seminar. So I request you all, and Dr. Rashi Rastogi will also be sharing you time to time information. Thank you all, and thank you Dr. Matharu and Dr. Rashi for inviting me here to share this important information. Thank you.
We have all the dignitaries with us today, and we are privileged that they have joined us. Due to network connectivity, we could not listen to them all. So without further delay, I invite Dr. Matharu sir. I welcome him once again and invite him to start today's session. Over to Matharu sir. Good morning, everybody. I am audible and visible. Yes, sir. Thank you. सबसे पहले मेरे मन में आता है किसी भी ओरिजिन को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम कैसे एकत्रित हुए, कैसे यहाँ पर पढ़ने का, हमें मिलकर बैठ के पढ़ने का और लर्निंग एंड शेयरिंग का मौका मिला, ये एक बहुत विचित्र घटना है। एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक, जिसको हमारे बहुत ही होनहार डॉक्टर राशि जी संचालन करता है, इसी गंगोत्री से बहुत और आगे शाखाएं निकली और वही शाखाएं आज वृक्ष के रूपों में बनकर सामने आ रही हैं। इन सबका श्रेय भी डॉक्टर राशि जी को जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसमें से इतने प्लेटफॉर्म निकल के आगे आए और सब लोग बखूबी काम कर रहे हैं। ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है डॉक्टर राशि के लिए, हम सब लोगों के लिए भी। हम सब लोग एक दूसरे से हर प्लेटफॉर्म से सीखते हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर राशि जी का इस प्लेटफॉर्म को सजाने के, सुधारने के लिए और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। उन्होंने अपना जीवन का बहुत मूल्यवान समय दिया है इस एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। थैंक्स। उसके आगे मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर, हमारे एमएल सहगल साहब, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्म कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग आज जटिल से जटिल केसेस को, जिनमें हम समझते हैं कि होपलेस है, होप नहीं है, उनको भी सुलझाने में सक्षम हो रहे हैं अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार। तो ये सिस्टम इतना अच्छा है, जितना सरल देखने में लगता है, अंदर से उतना सरल नहीं है। इसको गहराई से समझना, प्रैक्टिकली कैसे इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे रूब्रिक्स को सीखना है, उनके मीनिंग्स को, उनके भाव को और उनकी एप्लीकेशन कैसे वो भाव होते हैं जिनके ऊपर रूब्रिक को अप्लाई करना है, वो चीजें अत्यंत जरूरी हैं। आज मैंने एक छोटा सा एक निर्णय भी लिया है, तो आज से हम ट्राई करके देखेंगे कि एक लाइव केस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो लास्ट में मैंने बुलवाया है, अगर इन मीन टाइम वो पहुंच सके, पटियाला से आना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मैं और धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, उनकी इस रुचि को, उनके इस एंथुसियाज्म को, जो लर्निंग इंस्टिंक्ट है,
उसको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि तो अगर ये इंस्टिंक्ट हम सब में ना हो तो हमारा आगे बढ़ने का और सीखने का रास्ता संपन्न नहीं हो सकता। थैंक्स टू एवरीबॉडी those are joining with this learning and sharing platform। मुझे पढ़ाना नहीं आता, इसलिए मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ। वही भाषा जो पेशेंट हमारे साथ बात करता है, वही भाषा जो मैं पेशेंट के साथ बात करता हूँ, मैं हूबहू वही चीज आपके सामने पेश करनी चाहता हूँ जो वास्तव में प्रैक्टिकली घटनाएं घटती हैं। कभी कैसा होता है कि एकेडमिकली जब हम किसी ड्रग को डीपली स्टडी करते हैं, उसकी ड्रग पिक्चर को हम अपने मन में बसाते हैं और उसको फिर हम अप्लाई करते हैं पेशेंट में, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में, उसमें एक गैप रहने की संभावना बनी रहती है कि उस एप्लीकेशन को प्रॉपर कैसे किया जाए। जरूरी नहीं है कि हम हर केस में कामयाब होते हैं, फेलियर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो फेलियर्स भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अगर हम फेलियर से सीखना शुरू कर देंगे, कैसे हम फेलियर हुए, क्यों हम फेलियर हुए, तो नेक्स्ट टाइम फेलियर होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो मैं आज एक विचित्र केस छोटा सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं ये सोचता हूं कि नंबर ऑफ केसेस शेयर करने की बजाय एक केस को या दो केस को अच्छे से समझा जाए कि वो रूब्रिक्स कैसे आए, कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उसकी पर्सनैलिटी में उस दशा ने प्रभाव डाला, तो कैसे हम उसको समझ पाए। ये सब बातें एक्यूट्स में भी और क्रॉनिक में भी लागू होती हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि जी गुरु स्पीक्स का मतलब क्या है, आप गुरु हो। ये भूल कभी भी मत समझना भूल के कि मैं कोई गुरु हूं। मैं तो कुलीग हूं आप सबका और स्टूडेंट हूं सहगल इंस्टीट्यूट का। तो गुरु तो हमारे डॉक्टर सहगल वो ही रहेंगे और वही हमारे गुरु हैं। गुरु स्पीक्स, गुरु बानी एक ही बात है। जब हम कभी सुनते हैं कि आज गुरु बानी का कीर्तन संचार हो रहा है, कीर्तन संचार करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी भाई, कोई ग्रंथी, कोई टीचर, कोई एक्सप्लेनर, कोई भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु होके बोलता है। उसका मतलब ये है वो अपने गुरु के द्वारा सुनी हुई वाणी, उनके द्वारा बोली गई वाणी, गुरु स्पीक्स, उसी का वो कीर्तन कर रहा है। मैं भी ऐसा ही कहना चाह रहा हूं। गुरु स्पीक्स डजंट मीन माई सेल्फ। गुरु स्पीक्स, जो गुरुवाणी हमने सुनी, जो शिक्षा हमने अपने गुरु से ग्रहण की, जो वो बोले, जो उन्होंने बताया, उसी गुरुवाणी का कीर्तन ही गुरु स्पीक्स है। तो मैं आज अपना केस शुरू करने से पहले एक और दो बातें आपसे करना चाहूंगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सुना कि जो गुरु जी ने लाइट रिजर्व पर समझाया हमको, पूरी
होम्योपैथिक पैटर्निटी उस लाइट रिजर्वॉयर से बहुत ही लाभान्वित हो रही है और हम बहुत बड़े गेन्स ले रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े केस सॉल्व कर रहे हैं। मुझे सुनने को मिला, मैं उस डाउट को अपने हिसाब से जितनी मुझे समझ है क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने सुना कि लाइट रिजर्व मीन्स जस्ट ए सिंपल ट्यूब लाइट ओनली। ये वास्तव में बात सत्य ही नजर आती है कि जब तक हमने डॉक्टर सहगल को, इतने डीप अनुभवी इंसान को नहीं सुना था, तब तक हमें लाइट का इतना ही अंदाजा था कि लाइट लैंप की लाइट, ट्यूब की लाइट, बल्ब की लाइट, सनलाइट, यही है। मैं जब ये इस ड्रग का अनुभव किया, किसी भी इंसान ने, उसने जितना भी महसूस किया होगा, जैसे उसको लाइट अच्छी लगी तो उन्होंने बता दिया होगा प्रूविंग में कि ट्यूब लाइट अच्छी लगी। बट किसी लाइट को अच्छा लगने से पहले आपके अंदर एक विचार आता है। किसी भी एक्ट को होने से पहले एक विचार आता है, तब हमारी बॉडी उस एक्ट को करती है। आज मैं एक दो और भी एग्जांपल दूंगा। तो पहले देखने का विचार आता है, लाइट के लिए एक विचार आता है, तब हमारी आंख ऐसे खुलती है। उस देखने के प्रोसेस को कंप्लीशन देने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए हमें आंख का साथ चाहिए। बॉडी हमारी उसी तरीके से एक्ट करती है जब हमारा थॉट अंदर से आता है देखने का, लाइट को देखने का। उसी थॉट प्रोसेस को हमने लाइट डिजायर फॉर लिया। इसको बहुत से विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। लाइट, ट्यूब लाइट होते ही कई चीजें हमें विजिबल नहीं होती। हर चीज को ट्यूब लाइट विजिबल नहीं कर सकती। जब हम कोई ज्ञान चाहिए, हम किसी बात को सीखना चाहते हैं, हमें कोई किसी चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, वो भी लाइट है। वो जिज्ञासा ही जिसने ट्यूब लाइट को देखने के लिए अंदर से इंस्टिंक्ट पैदा की, वही जिज्ञासा किसी चीज को सुनने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए भी पैदा हो सकती है, वो भी लाइट है। लाइट मीन्स आपके अंदर की डार्कनेस को जो हल्का करती है, वो लाइट है। वो ट्यूबलाइट भी हो सकती है, आपके विचार भी हो सकते हैं, आपकी कंपनी भी हो सकती है, आपकी मौजूदगी भी हो सकती है। सो ऐसा ही हमारे गुरुजी ने बखरे बखरे वर्जन्स, बखरे बखरे मीनिंग्स उस लाइट जार फार के दिए, और वो सारे ही सारे मीनिंग प्रैक्टिकली हमें दिखते हैं, वो वाजिब लगते हैं, और हम प्रैक्टिकली उन्हीं बातों को लेके आज कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और हमने बहुत बार लाइट जार फार, जब भी इंसान बोलता है, आपकी बात से मन हल्का हो रहा है, मुझे लगता है कि आप बातें करते जाइए, मन हल्का हो गया। लाइट तो लाइट है, हल्का हो गया कि उसके अंदर की एक डार्कनेस मिटनी शुरू हो गई। तो मैं ज्यादा इस बात में जोर नहीं दूंगा। आज मैं इसी संदर्भ में आगे केस करने जा रहा हूं
उस केस को भी मैं और इसी अंदाज से बताऊंगा जैसे मैंने देखा, वो मैं आपको कहूँगा। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। आप मेरे साथ बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स हो, आप उसको देखना, अप्लाई करके देखना, अच्छा लगे तो जरूर प्रैक्टिकली करना, अदरवाइज छोड़ देना। ये एक केस मेरे पास बहुत ही बड़े लीडर का आया था। वो उसको हाँ, उसको काफी देर के बाद में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। हाँ, उसमें कुछ आवाजें आ रही हैं, काइंडली आप इसको ऑफ कर दीजिए। जी, तो उस लीडर साहबान को काफी जद्दोजहद के बाद में उसको लड़ने का, इलेक्शन का, चुनाव में आने का मौका मिला। तो वो चुनाव जीत नहीं पाए किसी कारणवश। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, बहुत लोगों के साथ में अच्छा डील किया, अच्छा डील करने की कोशिश की, लोगों के साथ अपना विश्वास जताया और लोगों का विश्वास जीता। आखिर में रिजल्ट जब आया तो उनको स्पष्ट हो गया कि लोग वास्तव में मेरे साथ नहीं रहे। वो डिप्रेशन आई, तो डिप्रेशन में उसकी मन की दशा ने उनको तकलीफ देनी शुरू कर दी। तो उनकी नींद बंद हो गई, भूख लगनी कम हो गई, खर्चा बढ़ गया था और लोगों का विश्वास टूटा। उसकी जो इम्पैक्ट उसके मन में पड़ा, उससे जो तकलीफ उनको मिली, उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन डगमा गया। उनको मेरे पास उनके जानने वाले कोई मेरे पेशेंट थे, वो उनको लेकर आए, काफी हाई स्टेटस के आदमी। तो उन्होंने मेरे पास आके बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे सभी दुश्मन नजर आ रहे हैं। मैंने जिनके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। मुझे लग रहा था कि शायद मैं तो बहुत ही बड़ी लीड के साथ जीतूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। वास्तव में एक भोलापन समझिए, एक काम करने का उनका अंदाज था, विश्वास करने का अंदाज समझिए। तो उनको ये धोखा मिला, उनको लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ। मैंने उनको पूछा, आप यहां पर, वो बैठे थे, कि सर आप बताइए आप क्या फील कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मुझे ये लग रहा है मैं इनको ना खत्म कर दूं, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी इनको मार के आगे निकल जाऊं। मैं ऐसा लीड करना चाहता हूं। तो यही तकलीफ है मेरे मन की, यही तकलीफ मुझे मिली कि मुझे लोगों का जो विश्वास घात हुआ मेरे साथ, उसकी वजह से मैं तकलीफ में आया। तो इतना सा ही केस था, नींद नहीं आ रही थी, तो परेशानी बढ़ रही थी, साइकेट्रिक दवाइयां चल रही थी नींद आने के लिए।
उनसे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ऐसा केस जिसको बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हो, वो भी साइकेट्रिस्ट एट्रिजोलोम जे वो मुझे इतना पता नहीं है, और भी बड़े काफी पावरफुल साल्ट, तो सिंडोपा शायद कोई ऐसा मेडिसिन का नाम है, आई डोंट नो। तो ऐसी मेडिसिन से छुड़वाना पेशेंट को बड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उस पेशेंट की बात सुना बात को, तो मैंने उसको मेडिसिन दी कि यू जस्ट मीट मी आफ्टर 7 days ओनली, आप जल्दी आइएगा, 1 हफ्ते के बाद मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। उनका HB भी काफी कम हो गया था, नींद काफी देर से नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब जब से ये रिजल्ट आया, अभी 1.5 महीना हो गया, तब से मेरे को नींद ही, मेरी गैब नींद हो गई पूरी तरह। मैं पूरी रात देखता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो ये उसके सिम्टम थे, और भूख नहीं लग रही थी। CBC की रिपोर्ट ने बताया कि HB कम हो गया है और TLC लेवल भी थोड़ा डाउन हो गया है। तो मैंने उसको जो मेडिसिन दी, 1 हफ्ते में आने के लिए वो सर को बोला, मेरे से सीनियर, एज में भी बड़े, रुतबे में भी बड़े। मैंने बोला कि सर आप 1 हफ्ते बाद में आइएगा। बोले कि डॉक्टर साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दवाई काम ही ना करे, मैं और भी ज्यादा कहीं उलझ जाऊं, तो मैं इस दवाई को तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनको बोला था अगर आप थोड़ा सा फील हुआ तो आप इसको कम करके देख लेना। बोले कि डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता, मैं कम तो नहीं करूंगा, अगर रिलीफ होगा तो मैं एक बार आपके पास आऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि कैसे करना है। मैंने सुना कि कभी एकदम से दवाई छोड़ने से और बीमारी भी बढ़ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि और ही गड़बड़ हो जाए। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, मैंने पेशेंट को बोला। अक्सर ऐसा ही सवाल जवाब पेशेंट हमारे साथ करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली बात देखते हैं लोगों के साथ। तो 1 हफ्ते बाद में वो पेशेंट मेरे पास आया। मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका, और क्योंकि वो बहुत ही डिग्निटरी पर्सन है, तो मैं उनकी बात आपको बताता हूँ। 1 हफ्ते बाद में जब वो आए, उनके चेहरे का थोड़ा सा जो लुक था वो मुझे पॉजिटिव लगा। मुझे लगा कि शायद ये आदमी कोई पॉजिटिव कुछ मेरे को बताएगा डेफिनेटली। जब आकर कर वो बैठे, डॉक्टर साहब को कोई मुझे नींद आने में फर्क नहीं पड़ा आपकी दवाई से। मैंने वो भी दवाई छोड़ी नहीं, जो नींद की दवाई उसमें देते थे स्लीपिंग पिल्स, वो भी मैंने नहीं छोड़े, और मुझे उनसे भी नींद नहीं आई। आपकी दवाई ने भी कोई काम नहीं किया, मुझे इससे भी नींद कोई नहीं आई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा सर आपकी दवाई से। अब यहाँ पर एक, मैं मोस्ट प्रैक्टिकली ही आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं टीचर्स की तरह पढ़ाना नहीं जानता, मतलब जस्ट जो प्रैक्टिकली हमारे क्लिनिक्स में जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे लगा देयर इज सम चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पेशेंट। वो चेंज मुझे पॉजिटिव लग रही थी। वो चीज मुझे महसूस करवा रही थी कि पेशेंट कुछ अच्छा ही होना चाहिए। कभी क्या होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग हमें धोखा भी दे जाती है, और ऑब्जेक्टिव जो देखना है पेशेंट का, वो हमें सही गाइड भी कर जाता है। मुझे लगा कि ये पेशेंट कुछ ठीक लग रहा है, और उन्होंने पूरी की पूरी बातें बताई कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मुझे आपकी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा।
मुझे तो आशा थी, मेरे जो साथ में आए हैं उन्हें बोला कि होम्योपैथी अच्छी होती है, बड़े विश्वास के आपके साथ लेकर आए थे। अब तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी दवाई भी मुझे कोई काम नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर हमारा एक सवाल होता है, जब पेशेंट आया था उसने आपके साथ कितनी बातें शेयर की? आपने सबको लिखा होता है, मैं अक्सर लिखता हूँ, उसकी फिजिकल कंप्लेंट्स को मैं पूरा लिखता हूँ अपने पास में। उसकी मानसिक जो कंप्लेंट्स होती हैं, मन की शिकायत होती है, आत्मा की शिकायत होती है, कुछ भी हो मैं उसको भी नोट करता हूँ, और उसके जो फिजिकल कंप्लेंट्स होती है उसको भी नोट करता हूँ। तो वो हमें गाइड करती हैं कि हमारे पेशेंट की यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है। तो मैंने उस दिन उनसे पूछा कि आपने अपना सीबीसी फिर से करवाया? डॉक्टर साहब सीबीसी मैंने नहीं करवाया, तो मैं ठीक ही नहीं फील कर रहा। कोई बात नहीं, आज करवाते हैं आपका सीबीसी। तो मैंने लेबोरेटरी टेक्नीशियन को बुलवाया और सीबीसी के लिए उनका ब्लड दिया, और वो जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मैं उनसे बात की कि आप मुझे ये बताइए, आपने उस दिन एक बात मुझे बोली कि मुझे खाने का बिल्कुल ही मन नहीं होता, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, कभी कॉफी पी, कभी चाय पी ली, कभी बिस्किट खा लिया, खाने का मन ही नहीं होता, यही पड़ा रहता है। तो वो कैसे है आपका? डॉक्टर साहब खाने की क्या बात है, उसमें चलो थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, मैं तो ये सोच के लेता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूखा ही मर जाऊं, मेरी बॉडी के अंदर कोई तत्वों की कमी हो जाए, तो मैं तो उसके हिसाब से थोड़ा लेता हूँ, तो थोड़ा ले लेता हूँ, वो तो मजबूरन मैं लेना शुरू कर दिया है। मैंने बोला सर आपने 1.5 महीने से क्यों नहीं शुरू किया, एक हफ्ते में क्यों शुरू कर दिया आपने? बोले कि मुझे लगा, जब से मैं आपके पास आया उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खाना तो थोड़ा खा ही लेना चाहिए। तो फिर आपने मन में तो पहले भी आता होगा? हाँ, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मन में तो पहले भी आता था कि खा लूं, मुझे खाना चाहिए। तो फिर तब आपने क्यों नहीं खाया, अब आप क्यों खा रहे हो? डॉक्टर साहब जी मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा अब खाने का, वो पहले खाने से मुझे नफरत सी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, अब मेरे मन में आया तो मैंने खा ही लिया, मुझे वो उतना बुरा नहीं लगा। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि खाने के प्रति उसकी जो नफरत थी वो कम तो हुई। हमारी बॉडी में दो ही बातें बहुत जरूरी है जीवन के संचालन के लिए, मन की पॉजिटिविटी और शरीर का इनटेक। अगर शरीर के अंदर कुछ जाएगा नहीं, ना आपका तन ठीक होगा, ना आपका मन ठीक होगा। ये अनिवार्य है आपकी मनोदशा के पहले भी कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जब तक आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उसकी कोई भी दशा ठीक नहीं हो सकती। मेरे मानने में तो न्यूट्रिशन, उसका भूख लगना, उसकी मन की दशा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे हल्का सा साइन मिला और उतनी देर में उनकी रिपोर्ट आई तो टीएलसी लेवल हल्का सा बढ़ा हुआ था और पॉइंट समथिंग एच भी बढ़ा हुआ था। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जैसे कैंट साहब ने बोला, कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर सुनने में भी देखने में भी, दोनों चीजों से हमें होना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बोलते थे कि मैं तो पढ़ा ही रहता हूं, उठने का मन ही नहीं होता,
वो कैसे लग रहा आपको? और साहब अब कितनी देर पढ़ा रहूं? 1.5 महीने से तो पढ़ा हूं। अब सोचा भी चलो कम से कम थोड़ा सा चलना शुरू तो करूं। तो सर वो पहले आपने क्यों नहीं शुरू हुआ? पहले आपके मन में नहीं आया क्या? अब क्यों आया? अब इसीलिए आया, खाने का मन हुआ, खाना अंदर गया, खाना अंदर गया, एनर्जी लेवल बढ़ा तो उठने का मन हुआ। पेशेंट ये बात समझने को तैयार नहीं और उसको समझ नहीं। जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने बोला कि शायद ऐसा ही हो सकता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं चलने की। अब कोशिश करने का मन तो हुआ। यहीं से ये छोटे छोटे बहुत ही जो बारीक पॉइंट हैं वो हमें गाइड करते हैं। प्रैक्टिकली जब आप पेशेंट देखते हैं, यही चीजें हैं जो हमने क्या किया पेशेंट के लिए, कि वो सही है या गलत है, उसका अंदाजा लगाने के लिए इन पॉइंट्स की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। शायद कुछ डॉक्टर्स को लग रहा हो कि शायद मैं आज ऐसे ही जनरल ही बातें कर रहा हूं। मेरे मन में आया कि ये बातें बहुत जरूरी है। जैसा हमने काम करना है वो काम कैसे हो रहा है, किसी जटिल केसों में कैसे हम उसको सुलझाएंगे। अगर पेशेंट ने बोल दिया कि जी मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, या तो हम उसकी पोटेंसी बढ़ा देंगे या पोटेंसी कम कर देंगे या मेडिसिन चेंज कर देंगे। अगर हमने बाखूबी जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसा हम नहीं देखेंगे तो हम भी मिसगाइड हो सकते हैं। पेशेंट की भाषा से मैंने पहले भी कभी बोला था कि भाव और भाषा में बहुत अंतर होता है। कोशिश करें कि भाव को समझने की। तो नेक्स्ट वीक मैंने उस पेशेंट को बुलाया कि सर आप 1 हफ्ता और दवाई खाइए। वो थोड़ा सा कन्विंस हुए मेरी बात से कि शायद डॉक्टर कुछ सही कह रहा है। तो नेक्स्ट वीक वो मेरे पास जब आए तो मैं बड़ा सर्टेन सा हो रहा था उनको देख के कि डेफिनेटली आज कुछ अच्छा जरूर होगा। तो वो पेशेंट से मैंने पूछा कि सर आप कैसा फील कर रहे हो? तो सर तो कोई इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। अब उसकी लैंग्वेज में एक तब्दीली आई जो मैंने महसूस की। इतना ज्यादा ये उन्होंने एक वर्ड यूज किया, इतना ज्यादा। इसका मतलब कुछ तो है। पेशेंट बेशक नहीं मानता, वो कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में ये भी कहा कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये छोटी छोटी बातें जो पेशेंट बोलते हैं हम इसको कई बार नजरअंदाज कर जाते हैं। यही मेरी प्रार्थना है मेरे कुलीग्स से कि इन बातों को कभी इग्नोर मत करना। एक्यूट इमरजेंसी में भी ऐसा ही और क्रोनिक में भी ऐसा ही होता है। तो और फिर बोला उन्होंने अब खाने का मैंने थोड़ा सा शुरू कर दिया है, मैं 1 रोटी तो खा लेता हूँ। डॉक्टर साहब वो उतनी बात नहीं बनी। कोई बात नहीं सर आप और वेट कीजिए थोड़ा। तो 15 दिन के बाद में जब पेशेंट मेरे पास आया मुझे फिर भी और सर्टेन लगा। उस दिन पेशेंट से बात हुई, डॉक्टर साहब अब ठीक लग रहा है। अब मैं थोड़ी शेयर करने लगा हूं। मुझे लगा इससे तो मैं बिल्कुल ही रह जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा हिलजुलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो मैं 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाता हूँ। पर मैं थोड़ा सा शेयर करने भी जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब नींद में उतना फायदा नहीं हुआ। मैं गोली तो लेता हूँ और गोली से तो बिल्कुल नींद पहले भी आती नहीं थी,
अब मुझे 2 ही घंटे नींद आती है। ओके, तो आप 1 हफ्ता और वेट कीजिए। मैं बोला कि सर नहीं, आप मेरे को ज़्यादा दवाई दीजिए, इस बार मैं 15-20 दिन के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पार्टी के कुछ काम करने हैं। ओके, तो मैंने उनको बोला कि सर आप अपना CBC जरूर करवा के लेकर आना। 20 दिन के बाद पेशेंट मेरे पास आया, मेरे को और अच्छा लगा वो, और उन्होंने बताया मेरे पास कि डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, रादर आई एम मच बेटर। मैंने उनको पूछा कि आप एक्चुअली से मेरे को सत्य से बताइए कि आप मुझे कब से लगने लगा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपको सत्य बताऊं, मैं आपको सच्ची बात कह दूं, ये भी उसी मेडिसिन के सिम्टम हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये लगा, ठीक तो मैं पहले हफ्ते ही थोड़ा सा मेरे को लग रहा था अंदर से। मैंने सोचा कहीं डॉक्टर मेरी दवाई ही ना बदल दे, तो ये कंटिन्यू यही दवाई रखे। तो मैंने इसलिए आपसे नहीं कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दवाई ही चेंज कर दे डॉक्टर और हल्की दवाई दे दे। अक्सर पेशेंट हमारे पास आकर के ऐसा ही बिहेव करते हैं, वो कम बताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर हमारी मेडिसिन चेंज कर दे, कोई हल्की दवाई दे दे हमें। तो उस पेशेंट को मैंने हाइसेंस 30 दिया था, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन थी उसी के हिसाब से। मैंने क्या देखा था उसमें, बोला कि सर अब लगता है कि मैं लीड कर जाऊं सबको, ऐसे ना कैसे मुझे आगे ऊपर जाना ही जाना है, इनको खत्म कर दूं जिसने मेरी अपोजिशन की है। कि मुझे अब तो इन सबों से विश्वास ही उठ गया है, जो मेरे साथ थे, जो बोले कि जी हम तो आपके पूरा साथ हैं, हम तो आपके पूरा साथ हैं। अब तो इनसे मुझे घृणा हो रही है। मेरे पास होते भी हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे इनसे बहुत तकलीफ होती है। यही तकलीफ ने मुझे बीमार कर दिया। ये उसके वो सिम्टम थे। तो मैंने क्लाइंब डिजायर टू लिया, क्लाइंबिंग। जेलसी किल ड्राइविंग टू, लगता कि मार दूं, इसको खत्म ही कर दूं इनको। इंजरीज बाय सराउंडिंग्स, जो मेरे आसपास लोग थे, जो मुझे आश्वासन दे रहे थे, उन्हीं ने धोखा किया मेरे साथ। अब उन्हीं से मेरे को घृणा आ रही है, उन्हीं से तकलीफ लग रही है मुझे। मैं इसी वजह से तकलीफ में हो रहा हूं। मुझे धोखा मिला है इन सब लोगों से। इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग्स, wrong suffered has wrong। मुझे गलत मिला इनके व्यवहार से। मैंने सोचा नहीं था कि जो लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। अब क्लियर कट हुआ कि जो मैंने सोचा था उससे 0.1% भी मुझे इनसे नहीं मिला। मुझे लग रहा था कि मैं तो कहीं बहुत ही बड़ी लीड से जीतूंगा। ये उसकी भाषा थी, और उसके चारों रूब्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। क्लाइंबिंग डिजायर टू, jealousy kill driving to, delusion being injured is, delusion wrong has suffered। क्लाइंबिंग डिजायर टू, अगर हम प्रूविंग में देखेंगे तो लेडर्स क्लाइंबिंग में आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, ये भी वही ट्यूबलाइट जैसा ही लगता है कि वो कौन सी पौड़ी या सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने क्यों लिया उसको। क्लाइंबिंग का आइडिया आपको क्लाइंब करवाता है, बॉडी क्लाइंब करती है। वो जो आइडिया है, वो जो डिजायर है, वो मन से आई।
आत्मा से आए कि मैं चढ़ जाऊं ऊपर। बॉडी तो साथ देगी आपका, भूख लगने का थॉट पहले आएगा, ना कि रोटी तोड़ के आपके मुंह में पहले जाएगी। वो जो थॉट है खाने का, वो फिर आपकी बॉडी को एक्ट करवाएगा, फिर बॉडी खाएगी। ऐसा ही क्लाइंबिंग का थॉट मन के अंदर आया, फिर उन्होंने क्लाइंब किया। कैसे किया? वो जरूरी नहीं है कि वो सीढ़ी ही चढ़ के जाए, वो सीढ़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो इंसानों की भी सीढ़ी बनाते हैं लीडर लोग, सब जितने भी लीडर लोग इंसानों को ही सीढ़ी बना के चढ़ते हैं, है तो वो हमारे जैसे ही, फिर उस प्लेटफॉर्म को छूते हैं। मैंने इस हिसाब से उसको लिया। आपको अच्छा लगा तो इसको कभी यूज करके देखना। क्लाइंबिंग डिजायर टू, जो चढ़ना चाहता है, ऊपर चढ़ना चाहता है, किल ड्राइविंग टू, मार दूं मैं, खत्म कर दूं इन लोगों को, उसकी वजह से मैंने हायर सेंस दिया। वो रॉन्ग है सफर कहां से आया, फियर बीटीड क्यों आता है इनमें? एक नाइवनेस है उनमें। हायर सेंस का पेशेंट नाइव है, आपको नाइव में मुझे मिलेगी। नेव बोलते हैं, नाइव बोलते हैं। तो ये नेव होता है, पहले ये भरोसा करता है लोगों के ऊपर कि मुझे इनसे मदद मिलेगी। भरोसा करने के बाद में फिर वो करता, वो भी ऐसा ही है। जितने लीडर लोग हैं, हम आपको पेंशन लगा देंगे, हम आपको नौकरी दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, वो भी तो इनसाइट ही करते हैं। बाद में कितना होता है वो हम सबको पता है। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता ऐसा ही है। लाइव होते विश्वास किया, उसके बाद में उनकी सपोर्ट नहीं मिली, फिर लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, धोखा हो गया। एक बार धोखा हो गया, फिर आगे आदमी चौकस हो जाता है, फिर कॉशियस हो जाता है। कॉशियस होता है किस लिए? कि आगे धोखा ना मिले, फिर बिग बेटेड हो जाता है। ऐसे ऐसे ये श्रृंखला हायर सेंस की जो यात्रा है वो चलती जाती है। मैंने और उस आदमी मैंने और सी बातें देखी, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप लोगों से बात करते हो, कहते हो मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, मैं आपको पेंशन लगवा दूंगा, मैं आपको कोई अच्छा कारोबार दिला दूंगा, मैं आपकी इतनी मदद कर दूंगा, तो आपके मन में उस टाइम में क्या होता है? फिर आप क्यों नहीं करते ऐसी बातें? डॉक्टर साहब, कहना तो पड़ता ही है ना, करें या ना करें, काम तो लेना ही है ना उनसे। तो सर फिर धोखा तो आप भी करते हैं, आपके पास होगा तो फिर कौन सी बात है? वो चुप हुए इस बात से, लेकिन वो डिसीटफुल है, उन्होंने भी तो डिसीट किया ना उनको। तो मैंने उनको बोला कि आपके अंदर ये बार बार ऐसी भावना क्यों आती है? कभी आप इधर चलते हो, कभी आप उधर जाते हो, कभी आपका विचार उस तरफ हो जाता है, कभी इस तरफ हो जाता है। मैंने उसको डिल्यूजन चेंजेबल में सोचा। मैंने जब उसको स्टडी किया, ये उनके प्रेजेंट रूब्रिक नहीं थे, प्रेजेंट रूब्रिक तो वही 4-5 थे जो मैंने आपको बताए। फिर मैंने सोचा कि इस केस को जरा स्टडी किया जाए, क्या और भी चीजें उस पेशेंट में मिलती हैं कि उस पेशेंट को और भी किसी एंगल से देखा जा सकता है। तो मैंने इन बातों से उन चीजों की, हायर सेंस की और पुष्टि की। डिल्यूजन चेंजेबल, मन में इतने विचार उसके आते हैं, उसको लगता है कि अब ऐसा हो जा, अब इसको ऐसे करना चाहिए। अब उसको लगता है कि अब ये लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, क्या मेरे को इस तरफ जाना चाहिए। वो हर वक्त उसके जो मन के भाव हैं,
जो उसकी फीलिंग है वो एकदम चेंज होती रहती है, क्योंकि उसके मन में एक डर है कहीं मुझे फिर धोखा मिलेगा, जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया। तो ऐसे लोग फिर कभी किसी के साथ धोखा करने से भी नहीं डरते। डिलूजन उनको लगा कि मैंने काफी लोगों के साथ गलत भी किया, जिन्हों लोगों ने मेरा साथ भी दिया था, मैंने उनका काम नहीं कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही उनके साथ ज्यादा ही धोखा किया होगा, तभी मेरे को साथ नहीं मिला। मैंने भी उनके साथ बुरा ही किया, डिलूजन क्रिमिनल। तो मैंने एक क्राइम जैसा उनके साथ कर्म ऐसा किया। तो ये थोड़ा थोड़ा यात्रा हम देखेंगे, उसी के साथ उसी मेडिसिन की पुष्टि करती जाएगी। तो एक और उसको मैंने जब उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनको चाय ऑफर किया। मैंने सोचा था कि शायद मैं और सीखूंगा इनसे, आज देखूंगा कि पढ़े लिखे इंसान है, बहुत ही बड़े रुतबे के मालिक हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो एक और बड़ी बात जो निकल के आई कि दोस्तों ने भी धोखा दे दिया। ये सब बातें हमारे सामने आती हैं। डिलूजन फ्रेंड अफेक्शन ऑफ हैज लॉस्ट लव, जो मेरे साथ प्रेम दर्शाते थे ना, अब वो भी दूर हो गए। उनका भी जाता रहा सब। उनका क्यों जाता रहा? क्योंकि उनको लीडर साहबान ने किया कुछ नहीं। उनको भी वो एवराइज ही था कि इनसे कुछ मिलेगा, उनका भी कुछ पूरा नहीं हुआ। और मैंने उनके साथ शेयर की बातें कि ऐसा आपको क्यों लगा। ये जो मैं अगली बात आपसे करनी चाहता हूँ, वो भी जैसे ट्यूबलाइट थी, क्लाइंबिंग था, उन्हीं के साथ थोड़ी सी मैच हो रही है। मैंने ऐसा ही अंदाजा लगाया, वो मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, आप मेरी बात को इनमें नहीं मानना, यूज करके देखना, तो फिर आपको सही लगा तो यूज करना। मैंने इनमें एक और रूब्रिक सोचा। जब मैंने उनसे बोला कि आपको ऐसा क्यों लगा था, उनको बोला कि सर, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मुकाबले में कोई और आदमी उतर आएगा। जब दूसरे आदमी को भी वहां से टिकट मिली, तो ऐसे आदमी को जो मेरे मुकाबले में आ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी ने मेरे को खराब कर दिया, और उनके साथ मुझे इतनी नफरत हुई, मुझे लगा मैं इसको भी खत्म कर दूं। तो मैंने उस भाव को थोड़ा सा सोचा कि ये क्या हो सकता है, वो आदमी ऐसा क्या है जो जिसके आने से इनको इतना तकलीफ हो रही है। वो इसका एक अपना दायरा बना हुआ था। इसको लग रहा था कि इस दायरा जो मेरा ही है, इस दायरे में और कोई आदमी नहीं आ सकता। उसको अपनी एक मोनोपोली सी लग रही थी। उसमें वो आदमी ने आकर के उसकी जो मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की, और तोड़ ही दी। तो उसके मन में ये आया, और मैंने उसको थोड़ा सोचा, ध्यान से देखा, मैंने उनकी पूरी बातों को स्टडी किया, लिख लिया। फिर बाद में मैंने सोचा कि यह है जेलसी चिल्ड्रन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन। जैसे उनको लगा न्यू कमर्स की जो जेलसी होती है, वो भी उसमें भी है सेंस पड़ी हुई है। ये एक नया आदमी आकर के जो उसको लोगों की अफेक्शन पहले मिल रही थी, वो छीन ली उसने। मैंने चिल्ड्रन तो इसमें नहीं लगाया। मैंने चिल्ड्रन इसलिए सोचा कि इस आदमी की सोच भी तो बच्चों जैसी है, कि भाई तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये आदमी आ गया, इसने मुझे खराब कर दिया। अगर तुम परफेक्ट हो, तुम अपने हिसाब से काम करते जाओ। अगर तुम्हारे में कोई कमी होगी, तभी उस आदमी ने आके आपको डिफीट कर दिया। ये बचगाना सोच आपने ऐसा की, ये बात मैंने सर से नहीं की, मैं समझने के लिए बात कर रहा हूं। तो जेलसी क्राइम टू वे, लग रहा है कि उसको खत्म कर दूं। किल ड्राइविंग टू जेलसी रिवेंज वांट्स टू टेक, कभी मौका मिल जाए ना
तो मैं इसको नीचे लगा के रहूंगा। डिलूजन इंजर्ड बीइंग, वही सबसे उसको बाहर से उसको तकलीफ मिल रही है। मैंने इतना थोड़ा सा काम हायर सैम्स के ऊपर मैंने देखा। हायर सैम्स के पेट के लिए मैंने इतना देखा, एंग्जाइटी ईटिंग आफ्टर, या ऐसा कुछ में मैंने देखा। तो मैंने उसको भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया कि ये ऐसा क्यों। जो पेरेंट मेडिसिन है, ये खुरासानी अजमैन है, जो हायर सैम्स होती है, ये अजमैन का एक वखरा रूप है, उसी कैटेगरी में आती है। तो उसके अजमैन क्या है, पेट में काम करती है, पेट की गैस के लिए काम करती है। जब खाना खा के आदमी को अफारा बढ़ता है, अनइजीनेस होती है, एंग्विशनेस होती है, तो हम अजमैन थोड़ी बहुत देते हैं तो पेशेंट ठीक होता है। ऐसा ही इसमें भी ये सिम्टम है, शायद एंग्विश या एंग्जाइटी है, ईटिंग आफ्टर है। तो जो पेरेंट मूल किसी भी ड्रग का एक्शन है, वो भी मन के ऊपर और शरीर के ऊपर वो नजर आता है। आज के लिए इतना ही। मैंने हायर सैम्स के बारे में जितना खुद सीखा, आप सब लोग को सामने बताने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे, आप इसको एक बार जरूर देखना। वो पेशेंट हमारा आज भी बहुत अच्छा है, तो उसके साथ जो मुझे मिलने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम उसकी सारी की सारी दवाइयाँ छुड़वा दी। कोई उसने 1 महीने के बाद में कोई ट्रैंकुलाइजर नहीं लिया, कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं लिए, कोई सिंटोपा वगैरह कोई मेडिसिन आती है वो नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। और ऐसे मेरे पास बहुत केस है जिनकी मैंने एलोपैथी की पूरी दवाइयाँ जो डिप्रेशन में देते हैं वो छुड़वाई हैं। वो केस हम जरूर देखेंगे। एक कॉल आ रही है पेशेंट की। हेलो हेलो। क्लाइम डिजायर्स का रोगी क्या क्या बोल हाँ सकता है और हाँ, को थोड़ा भर्सन। हाँ मैं सब बताता हूँ। एक लाइव पेशेंट जो मैंने आपके साथ सोचा था दिखाने को, वो पेशेंट बाहर आ गया है। अगर आप कहो तो मैं उसकी एंट्री करवा लूँ, जरा सामने बिठा लूँ आपको वो लाइव केस आज से दिखाने की शुरुआत करते हैं और आगे को ठीक ऐसे ही क्लास होया करेगी। कोशिश करूंगा कि लाइव पेशेंट बेशक वो क्रॉनिक हो, बेशक वो एक्यूट इमरजेंसी हो। अब हम एक लाइव वर्कशॉप किया करेंगे। अब थ्योरेटिकली काम से थोड़ा सा ऊपर उठ के हम प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी 1 मिनट के लिए आप होल्ड करना, मैं अभी पेशेंट हेलो सर, यू आर ऑडिबल। आवाज आ रही है आपकी? हेलो, यस सर, यस सर। एम आई ऑडिबल?
हाँ, एनीबॉडी इज नॉट स्पीकिंग। ओके, तो आज हम हाँ जी, टेस्ट हो गया जो टेस्ट करवाया ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਚਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਫੋਰਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ हाँ डॉक्टर आशीष, सब लोग देख रहे हैं ना? जी सर, देख रहे हैं जी। ये पेशेंट आपके सामने है जी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदी बोलना जानते? थोड़ी बहुत बोलना थोड़ी मैं हिंदी बोलूँगा, तुसी पंजाबी समझ लो। अच्छा, आपकी जो तकलीफ थी वो कैसे शुरू हुई थी, कैसे बात हुई आपकी? ये मैं लुधियाने गया था नर्विस डॉक्टर को दिखाने, जो नर्विस का डॉक्टर होते हैं न्यूरो के जी। तो मेरी मिसेज को मैं दिखाने गया था लुधियाने पटियाले से। बड़ा अच्छी तरह गया मैं अपनी कार से, कोई मैनू घबराहट नहीं सी, कुछ नहीं सी। तो जो डॉक्टर साहब को गए उत्थे मैं अपनी मिसेज नूं दिखाना सीगा, तो मैंने कहा चल मैं भी आया, मेरे भी लत्तां 'च दर्द होंदियां, मैं भी दिखा लेना। इन्होंने बोला कि मुझे भी टांगों में दर्द हो रहा है, अपनी वाइफ को दिखाने के लिए गए थे कि मैं भी इनसे जरा परामर्श ले लूं, मैं भी दिखा लूं कि मुझे क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कुछ ब्लड के मेरे को बोला कि अपना ब्लड टेस्ट कराओ लेबोरेटरी में। तो उन्होंने लिख दिया, मैं लेबोरेटरी चला गया, वहाँ पर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। तो आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब ने मेरे को बुलाया वहाँ पर और बोले कि आपको बहुत इमरजेंसी है। मैंने जी काफ़ी इमरजेंसी है, मैं तो अच्छी तरह, कोई घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है, पटियाले से आया हूँ। मैंने जी बोलो क्या है? कहते आपके प्लेटलेट्स घट गया है। मैंने किन्ने जी? कहते 5000 है गए। मैं हैरान हो गया सुन के। मैं तो किसी होर बीमारी लिए आया सी, बीमारी होर निकल आई। मैनू कहते तू ना हुणे अभी इसी टाइम आपको आवाज आ रही है ना पेशेंट की? हाँ जी, आ रही है। ओके ओके, हाँ जी बोलिए। वो डॉक्टर साहब बोले कि आपकी इमरजेंसी है, आप जाकर डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में ही दाखिल हो जाओ। मैंने कहा जी मैं तो पटियाले से आया हूँ, मैं पटियाले जाकर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता हूँ। नहीं, कहते आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, डीएमसी में ही हो जाओ। और मैं डीएमसी में चले गया, वहाँ मेरे को उन्होंने दाखिल कर लिया इमरजेंसी में। तो अपना उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाए 1-2, और मेरे को 2 यूनिट प्लेटलेट्स भी उन्होंने दिए। तो वहाँ मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और 3-4 दिन के बाद मेरे 20,000 हो गए थे प्लेटलेट्स। तो हो गए तो वो कहते आज आपको घर भेज देते हैं। तो उन्होंने मेरे को घर भेज दिया, मैं पटियाले आ गया। और नेक्स्ट डे मैंने अपने प्लेटलेट लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए, तो वो 15,000 रुपये आ गए, कम हो गए, 20 से 15,000 हो गए। तो मैं घबरा गया। मैं फिर लुधियाने वहीं हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया। तो वो बोलते हैं कि ये कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए। उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयाँ दी और कहते ये खाओ, हो जाएंगे ठीक। तो वो लगातार चल रही हैं। तो फिर मेरे को किसी ने बताया, अब मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने बताया कि धूरी डॉक्टर साहब है होम्योपैथिक दे, उनके पास जाते हैं, वो ठीक करेंगे आपको। और मैं यहाँ धूरी आ गया। इन्होंने डॉक्टर साहब ने तो दिखाया, तो इन्होंने लेबोरेटरी बोलते हैं कि लेबोरेटरी में पहले टेस्ट करा लो। जब हमने टेस्ट कराया तो 8,000 मेरे प्लेटलेट्स और भी कम हो गए। जो दवाई वहाँ दी उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, सब कम ही हुए। तो डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, हमें तो बहुत आस्था है आपके, इस आस्था के जरिए आए हैं कि आप हमें ठीक करेंगे।
तो इन्होंने कहा अगर आप आस्था रखते हो तो यहाँ बैठो, आपके शाम को बढ़ा कर ही भेजेंगे यहाँ। इन्होंने फिर अद्धे घंटे बाद मैनू दवाइयां दित्तियां, 3-4 ड्रॉप्स दिते ते शाम 4 बजे उसे टेस्ट कराया तो 20,000 साडे हो गए। मैं बड़ा खुश होया ते डॉक्टर साहब का थैंक्स करया जी, बहुत अच्छा। बढ़िया ट्रीटमेंट करया। अच्छा, अब आप कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। नींद कितना लगी ਤੁਹਾਨੂੰ? नींद है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पहला नींद थोड़ी जी घट सी ना? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਦਾਂ ਜੋ ਪੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਚਟਾਕ ਜਿਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ 2 ਨਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਟ गया। हाँ, बस आज इधर आ थैंक यू जी। ये पेशेंट हमारे साथ बाय द वे आज इन्होंने आना था, कल मैंने बाहर जाना था तो मैंने इनको बोला कि आज आप मेडिसिन ले जाओ, और इन टाइम हमारे सामने आए। तो इन पेशेंट को जब मैंने देखा तो 8,000 सेल जो डीएमसी कहते हैं आप, डीएमसी के बाद में पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद में इनके साथ इनके दोस्त हैं, कुलीग हैं, बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, और इन्होंने इनको बताया नहीं ताकि इनको कोई तकलीफ ना आ जाए। इन्होंने बोला कि आपके सेल तो 15-16 हज़ार शायद, ऐसा ही बता दिया। उस टाइम में ये भी एक मैं आपसे बात करता हूँ कि ये एक अति जरूरी बात है। पेशेंट को कभी भी पेशेंट के नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा बात ना की जाए, क्योंकि पेशेंट तो पहले से डरा होता है। हम पेशेंट को आश्वासन देना है, थोड़ा आश्वासन के साथ में ट्रीटमेंट भी देना है। दोनों बातों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। क्यों? अगर पेशेंट को पहले ही बता के आप उसको डाउन कर लेंगे तो पेशेंट का जो मनोबल है एकदम टूट जाता है। तो इन्होंने ऐसा ही किया। एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत अच्छी पोजीशन पे रिटायर हो गए हैं, तो इन्होंने इनको बताया नहीं और अंदर से पर्ची लिख के मेरे को बोल दी कि दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड दिस इज कॉन्फिडेंशियल। तो मैंने पेशेंट के साथ शेयर नहीं की। जो इन्होंने बोला मैंने वही बोला कि आपके 16,000 सेल हैं, कोई बात नहीं, अब चेक करवा लेते हैं। तो मैंने इनको मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद में इनको बोला कि आप ऐसा करो। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुश्किल है भाई, अब जल्दी कैसे हो जाएगा। तो मैंने इनको बोला कि आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद कुछ देर 4 बजे तक का मैंने इनको टाइम दिया, और 4 बजे जब इन्होंने चेक करवाया तो वो 20,000 सेल आए, प्लेटलेट्स थे। 8,000 से 20,000, पर पेशेंट को तो लगा ना कि शायद 4,000 ही बड़े हैं। तो फिर हमने इनको पास में बैठ के, ये ऑफिसर साहब ने भी और मैंने भी उनको समझाया कि आपके एक्चुअल सेल वो 8,000 थे। वो हमने इनको टेस्ट भी दिखा दिया। फिर इनको और भी खुशी हुई, जो मेडिसिन 8,000 से 20,000 इतनी जल्दी कर सकती है, मैं उससे ठीक हो सकता हूँ। और नाउ पेशेंट इज फीलिंग वेरी वेल। और कल टेस्ट में, और कल जो पेशेंट ने दोबारा कर दो, कल जो पेशेंट ने टेस्ट करवाया उसमें अब 30,000 है, और मुझे आशा है कि विद इन कमिंग टाइम ये पेशेंट बहुत अच्छा फील होगा। ये इनकी रिपोर्ट है 30,000 की। शायद इसमें दिखाई देता होगा कि नहीं, आई थिंक इट मे बी विजिबल और नॉट भी, नहीं विजिबल है। तो इनकी मैं हार्ड कॉपी इसमें पोस्ट कर दूंगा, बाद में उसके ऊपर कर देंगे। तो ये 30,000 है और पेशेंट इज फीलिंग वेरी वेल। तो ये आज का एक लाइव केस आपके साथ मैंने शेयर किया। तो नेक्स्ट एक और केस शायद बाहर बैठा है, अगर आप चाहो तो मैं उसको भी बुलाऊं। मुझे लग रहा है कि दरवाजा खुला है ना, उसको देख के लोग आ जाते हैं। अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो देन इट्स ओके, अदरवाइज हम क्लास को एकदम बुला लिए, एकदम बुला लिया। ਹੁਣ सर ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर बाहर बैठो, उन्होंने भेज दो अंदर। हाँ, आज देखते हैं कि कितना हम किलर हैं, कितना हम कामयाब हैं। ये पेशेंट का एक्चुअली जो गए हैं उनकी ये हिस्ट्री है, बच्चे में अच्छे उठा ले, उनकी जो हिस्ट्री थी कि ये पहले भी एडमिट रहे थे। वहाँ पर इनको डायग्नोज हुआ था
बैठो 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 ऐसे बैठो, इधर हो जा, थोड़ा जगह हो जा बस। तो ये पेशेंट अब बहुत अच्छा फील कर रहा है, वो आपके सामने था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसकी मेडिसिन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हाँ, अभी बता देता हूँ शायद। जी, इनको मैंने बेल 6 में दिया था, जो पहले वाला पेशेंट था। तो उसका जो रिजल्ट है जो आपके सामने है आज, राइट। अब इस बच्चे को देखते हैं हम, कार्ड नंबर। अगर हम अपने फेलियर्स डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारी कामयाबी मुश्किल है। हमारा फेलियर ही हमें कामयाबी की ओर लेकर जाता है। हाँ बेटा, की हाल है, कैसे लग रहा है? दोबारा शुरू हो गया सी, हूं कितना फील हो रहा है? हाँ, उड़न हो जा है। हाँ, वो कितना है? हाँ, कोई गल नहीं। हाँ अच्छा, 18 की इंस्पेक्शन बढ़ गई। हाँ, पहला करना सीगा। ओके, नहीं वो भी ठीक होगा, क्योंकि ATLC बदलना बहुत जरूरी है। हाँ कोई गल नहीं, आप हूँ ही देखते हैं। ओके, हाँ हाँ, वो गोली करके हो गया ना ज़्यादा। हाँ बेटा, अब क्या क्या फील हो रहा है आपको? ਹੁਣ बुखार ठीक लगता है। पहला नालों कितना फील हो रहा है? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पहले नालों बेटर फील हो रहा है? ओके, और कितनी सी TLC पहला? हाँ कोई नहीं, बस इन्हें बहुत है। हाँ कोई नहीं, हाँ वही। हाँ, अब मैं पेशेंट की बात आपको बता रहा हूँ। जब इनके फादर साहब बता रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, कि जब पेशेंट तकलीफ में होता है, इसको डर लगता है कि मुझे आप बाहों में लेके रखो, मुझे जफ्फी पा के रखो, मुझे साथ लगा के रखो। ये इनका सिम्टम मेन था, और इतनी वीकनेस थी कि बैठा नहीं जा रहा था इससे, उधर बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। और इनके जो TLC लेवल था वो 3100, हाँ 3100, हाँ 2700, हाँ जो TLC लेवल था वो 27 था। और आज इसका जो TLC है वो 34 है, 4400, 34.400, 3404। हाँ, आज 34 है इनका। और जो इनका प्लेटलेट्स काउंट था वो आज का है, हाँ हाँ, आज 258 है। जो प्लेटलेट्स काउंट था वो पहले कम था, वो 2.221 था। तो ये पेशेंट की इम्प्रूवमेंट है इसमें। और ये अब पेशेंट कितना अच्छा फील हो रहा है पहले से। हाँ हाँ, बुखार भी नहीं है, बुखार भी ठीक है ना। हाँ आ जाओ। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। हाँ हाँ, वो ठीक हो, सारा बीमारी बाहर आ रही है बेटू। दिस वाज द लाइव केस जो हमने देखा। इसको GLS 30 दिया हुआ है, और उसके बाद में इस पेशेंट की ये कंडीशन अब काफ़ी इम्प्रूव हुई है और बहुत अच्छी हुई है। ये बाय द वे हमारे पास आज मेरा दरवाज़ा खुला है, ओके। ये पेशेंट इमरजेंसी में देखना पड़ा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। कि आगे को हम ऐसी शुरुआत करें
मेरे को मैसेज में डालना कि इट विल बी बेटर और नॉट, या एकेडमिकली ही हम चलें। और मेरा मानना है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखें कि लाइफ कैसे ठीक होते हैं, वो एक्यूट इमरजेंसी के हों या वो क्रोनिक में हो। अगर आप सबों की ये राय होगी तो नेक्स्ट टाइम वी विल अरेंज फॉर द लाइव केसेस, लाइव वर्कशॉप विल बी देयर। थैंक्स एवरीवन। डेफिनेटली तो क्लियर तो बहुत कर दो अच्छा सर, रहेगा, कैसे बहुत ली अच्छा। हाँ, एक करके बोलिए। हाँ जी, इसको क्लियर करो, कैसे दिया आपने बेल 6 और जेलसीन, थोड़ा ये भी हाँ वो बता बेल के 6 दो पे, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ ये तो जेल्स बाद में है। और उसकी हाँ आप फ्रीक्वेंसी उधर पोटेंसी बैठ वो जाइए। भी हाँ बता। हाँ हाँ अभी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये तो चलो इसी का पहले बता देता हूँ। हाँ इसी का पहले बताता हूँ, उसका बाद में बताऊंगा। इसका नाम है जॉर्ज भास्कर, जॉर्ज 14 इसका है। जब ये पेशेंट, हाँ बस थोड़ी, हाँ जी, बस एक मीटिंग एंड हो जाने फिर बुलाना था। तो जब ये पेशेंट आया था ऐसे ऐसे गिर ही रहा था, बिल्कुल ही गिर रहा था और अपने फादर को पकड़े हुए था, जहाँ पर इससे बैठा नहीं जा रहा था। तो हम जनरल सिम्टम हम पहले भी डिस्कस करते हैं, हेड डिजायर टू टॉर्पर, हेड डिजायर बिंग एम्यूलेट। और इसके फादर ने एक बात और बताई, जब इसको ज़्यादा बुखार हो जाता है रात को तो ये बोलता है कि मेरे साथ लेट जाओ और मुझे पकड़ के सोता है, और ये भी बोलता है कि आप भी मुझे पकड़ के रखो। वो बात भी वहाँ पर लागू हो रही थी। तो इसी बात के ऊपर मैंने इसको जेल्सियम 30 दिया, वो आपके सामने है। ये रिपोर्ट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, एवरी वो एंगल से पेशेंट हमारा ठीक हो रहा है। हाँ क्या पूछ रहे थे आप इसमें, रूब्रिक्स क्या, वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ सर, कौन कितनी डोजेस दी? 3 डोजेस ही दी बस? हाँ तीन डोज ही दी मैंने। मैं ज़्यादातर एक्यूट ओके। में भी क्रॉनिक में भी 3 ही देता हूँ। कभी जरूरत पड़ती है तो पोटेंसी भी बढ़ानी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल इन एवरी केस। जैसा भी केस है उसी के उसके मतलब हिसाब से करता हूँ मैं। ये मैंने जेल्स का केस दिखाया आपको। कितनी देर में मैं दूसरा भी, कितनी देर में रिपीटिशंस किए आपने? वो 15-15 मिनट में मैंने रिपीट की। जब पेशेंट को लगा कि मैं थोड़ा सा बेटर हूँ तो मैंने इनको भेज दिया था। आज एक्चुअली कल मैंने बाहर जाना है, इसलिए ये पेशेंट अपने आप ही आ गए आज। इनको पता नहीं था कि मैं पेशेंट नहीं देखता, ये बाहर खड़े हुए थे। तभी मैंने सर सोचा बेल कि वाला चलो भी आपको, बता दो। हाँ वो भी बता रहा हूँ कि मैं आपको भी दिखा दूँ, जरा मैं पेशेंट को भी देख लूँ। ऐसा ही है, ये बेल वाला दिखा रहा हूँ आपको। हेलो सर, नमस्ते। जी, तो आप सब मेरे को ये राय देना कि क्या ऐसा अच्छा है कि हम एक लाइव वर्कशॉप किया करें। हाँ सर, ऐसे ऐसे ही अच्छा रहेगा। हाँ मेरे को सभी को राय चाहिए। सभी लोग अपना अपना मैसेज डाल दीजिएगा, डॉक्टर राशि जी के पास मैसेज डाल देना। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है देन वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। लाइव वर्कशॉप होगी हर बार। हेलो सर। सर मेरे ख्याल से हेलो सर। होगा तो ज्यादा बेटर होगा सर। हाँ ये वही फॉलो वाला था, लाइव केस टेकिंग ज्यादा बेटर होगा सर। जी 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 स्टार्टिंग जी से हाँ केस जी, अगर बताया जाएगा ना तो वो अच्छा रहेगा सर। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से आपके सामने ही केस टेकिंग होगी। तो ये पेशेंट जो वहाँ बैठे हुए हैं वो आए थे, उन्होंने मेरे पास बोला कि डॉक्टर साहब मैं पहले पीजी में एडमिट रहा हूँ, मेरे को बुखार नहीं छूट रहा था और बुखार चढ़ता रहा। उन्होंने मेरी स्पाइन का ऑपरेशन किया, उन्होंने देखा कि स्पाइन में कोई इन्फेक्शन थी, वो निकाल दी। उसके बाद में उन्होंने एक ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन शुरू कर दी और 60 मिलीग्राम वो प्रेडनिसोलोन के साथ में वाइसोलोन प्रेडनिसोलोन स्टीरॉयड होता है वो शुरू किया। और उसके बाद भी वो उसका जो डीएमसी में जब चले गए वो तो प्लेटलेट्स नहीं बढ़ा, वो बल्कि 15,000 प्लेटलेट्स हुए थे। जब वहाँ से डिस्चार्ज हुए तो फिर वो 8,000 आ गए। 60 मिलीग्राम चलते चलते स्टीरॉयड्स। अब जब मेरे पास आए तब 8 था इनका, 8,000 थे प्लेटलेट्स और नींद भी कम आती थी और पेट में भारीपन लगता था, थोड़ा सा सिर के ऊपर भी वजन था बहुत ज़्यादा। उसलिए डरे हुए बहुत थे कि इतने प्लेटलेट्स कम हो गए तो क्या होगा। तो जब मेरे पास आए मेरे को बोले कि डॉक्टर साहब मुझे तो ना ऐसा लगता है ना मैं मार दूं, मेरे को गलत दवाइयां देके इन्होंने ऐसा कर दिया।
ये सारी बातें मैंने सुना, मैं देखता रहा कि ये एब्यूसिव है, ये किल्ड टैटू है, ये क्या है। सब चलते चलते लास्ट में क्या बोला कि डॉक्टर साहब मुझे आप ना बस ठीक कर दो, मेरे जो सिर के ऊपर वजन पड़ा हुआ है। हाँ, एक और भी इसमें सोचने में ऐसी बात थी, इन्होंने अपने कोई प्रॉपर्टी बेची जिसका वो मूल्य बहुत ज़्यादा था और इनको कम में बेचनी पड़ी, इनको बाहर जाने का प्लान की वजह से। उन्होंने बोला कि मेरे दिमाग के ऊपर बहुत वजन पड़ा हुआ है इस बात का, आप बोलो आप क्या चाहते हो। देखो, इसके लिए अगले बहुत से रूब्रिक निकल आएंगे, लेकिन हमने पेशेंट का भाव देखना है। पिक्यूनरी लॉस भी है, ये भी है, और उसको लॉस हो गया है, एलिमेंट्स आफ्टर लॉस है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सभी को छोड़ के हमने क्या देखना है कि वो पेशेंट आपसे क्या चाहता है, उसका भाव क्या है। तो पेशेंट बोलो सर मेरे दिमाग से ना ये वजन उतार दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये वजन उतार दो, बस मेरे को आज ठीक कर दो, और ये आज ही पॉसिबल है क्या, मेरे को जल्दी से ठीक कर दो बस। लास्ट में उसका सबसे ज्यादा जो लास्ट उसकी जो फीलिंग थी वो ये थी, मैंने उसको बेलाडोना 6 दिया था। आज रिजल्ट आपके सामने है। ओके सर, वो 6 क्यों हुआ सर? थोड़ा 6 के बारे में थोड़ा बताइए। 6 ऐसा ही, मैं ये देखो थोड़ा सा एक अपना अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। मुझे लगा कि मैंने 3 भी नहीं दिया, और जो विटैलिटी लेवल जब मैं देखता हूँ पेशेंट का, जैसा मुझे अंदाजा सा लगता है उसके हिसाब से मैं पोटेंसी दे देता हूँ। जैसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, इससे भी ज़्यादा कहीं पैथोलॉजी एडवांस है, तो मैं 3 से भी स्टार्ट कर लेता हूँ, और मीडियम में है तो 6 में स्टार्ट करता हूँ, और विटैलिटी इतनी ज़्यादा लो नहीं है और पैथोलॉजी एडवांस नहीं है तो 30 से स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना ही पता है इसके बारे में, और मैं ऐसा ही करता हूँ। 3 डोजेज ही दी थी। हाँ, इसको भी 3 डोज दी। हाँ, ये देखो आप। नहीं सर, ऐसे नहीं, हम तो वैसे आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, वो सामने था ना इसलिए दिखा दिया आपको। इसको भी 3 ही डोज दी है अभी। कमाल की बात है, देखो अब 30,000 इतनी जल्दी, वो स्टीरॉयड से 60 mg से भी नहीं बढ़ रहा था। 60 mg स्टीरॉयड कम डोज नहीं होती, काफी डोज होती है। मैंने किसी एलोपैथ से पूछा था, मुझे भी नहीं पता इस बात का। इंटरवल पे दिया आपने? जी, हाँ, बिल्कुल उसी में। वेरी गुड। तो एक भाई देवे, हम सबों की किस्मत के लिए दोनों ही पेशेंट आज लाइव आपके सामने आ गए। तो ये हमारे डॉक्टर गुरु डॉक्टर सहगल साहब की सबसे बड़ा हमारे उपकार है कि हम ऐसे केसेस को हैंडल करने की हिम्मत कर रहे हैं और उनको ठीक भी कर रहे हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, कौन? हेलो जी बोलिए। हाँ सर, मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रही थी सर, ऐसा पॉसिबल है क्या इफ यू हैव टाइम की जैसे बीच में कुछ ऐसे सेशंस हो जाएं कि जो मेडिसिन के एक रेमेडी पकड़ के उसके जितने भी रूब्रिक्स हैं। बिल्कुल हो सकता है। उसमें मेरे को पता क्या लगता है, जनरली उसको हम क्या जो हम बातें करते हैं इनको हम बोलते हैं कि एक हल्की फुल्की बातें हैं, और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये बातों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं जो बातें आज मैंने डिस्कस की आपसे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है केस चेकिंग में, केस हैंडलिंग में, केस की बाद में फॉलो अप में। अगर ये चीजें हम नहीं देखेंगे तो हमारी कामयाबी थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है। जी सर। आप लोगों की क्या सहमति है? मुझे अपने पूरे व्यूज, पूरे अपने वो जितने भी आपके कमेंट्स हैं डॉक्टर राशि जी को दे देना आपने। जी हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी, हम सब लोग अपना जो आज का बोलिए। हेलो बोलिए। मुझे भी नहीं जी। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट आप सॉरी बहुत सर, ये शायद आपका आवाज इको हो रहा है। आपका आवाज इको हो रहा है शायद। अब ठीक हो रहा है।
हाँ जी सर। जी बोलिए, जी हेलो बोलिए। सर। सर ये जो जेलसीमियम में एक रूब्रिक है लाइट डिजायर पॉजिटिव, तो सर वो तो किसी रेपर्टरी में शायद है नहीं, वो कैसे यूज करना है? कैसे? जेलसीमियम का एक रूब्रिक है ना लाइट डिजायर जी पॉजिटिव। जी हाँ, वो डॉक्टर साहब इसमें नहीं है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं डॉक्टर मधु बोल रही थी सर। जी 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 डॉक्टर जी, ये उसमें नहीं है। पेशेंट ने कभी नहीं बोला कि जी मुझे तो पक्का ही ठीक कर दो आप। वो पेशेंट कहता है ना जब हम तब लेते हैं, बस यही सिम्टम थे। हेड डिजायर टू बीइंग टॉर्पर, हेड डिजायर बीइंग एमुलेट्स, क्लिंगिंग टू पर्सन एंड फर्नीचर। उसको साथ अटैच बोला कि मेरे साथ लेट जाओ, मेरे साथ ही रहो आप पापा, मेरे साथ ही रहो, कहीं जाओ ना, बस ये। अच्छा, और इसमें सिर्फ जेलसीमियम ही है ना सर? जी मतलब हाँ जी हाँ किसी जी। रेपर्टरी में तो हाँ है। अच्छा, बस यही एक बात मेरी आप थोड़ा सा ध्यान से सर सुनिए। था आज के प्लीज। लाइव सेशन के बारे में जो भी आपके अच्छे बुरे विचार हों वो डॉक्टर राशि जी को भेज देना प्लीज। मैं देखूंगा कि आज का पढ़ने का जो हमारा सीखने का तरीका है कि सही है कि नहीं, आपको कैसा लगा, तो आगे फिर उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। सर अब मेरी आवाज आ रही है, शायद आ रही है जी क्या? ठीक, आपकी आ रही, जी जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है थैंक यू आपकी सो मच सर। बहुत अच्छे था जी लाइव केसेस, और हायोसाइमस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी। उसमें एक जी क्वेश्चन है सर, आपने जो जी रूब्रिक लिया था ना क्लाइंबिंग डिजायर जी 2, हाँ तो जी हाँ जी। उसमें एम्बिशन इंक्रीज्ड और क्लाइंबिंग डिजायर 2 को कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? क्लाइंबिंग में ऐसा होता है, एम्बिशंस जो होता है वो आदमी प्लान उससे होता है। क्लाइंबिंग जो होता है जहां से भी रास्ता मिले वहां से भी चढ़ने की वो कोशिश करता है। क्लाइंबिंग के लिए एक सेल्फिशनेस वो होती है कि आप वो किसी को डिफीट करने के लिए आगे निकाल के लताड़ के निकल जाना किसी को। जैसे मेला होता है ना, मेले में जब लगता है कि वहां पर कुछ दिख रहा है, उसको देखने के लिए वो आदमी किसी की परवाह नहीं करता, ऊपर से निकल निकल के सामने आगे चढ़ जाता है। मैं उस भावना को क्लाइंबिंग लेता हूँ। जो एम्बिशन इंक्रीज है वो एक प्लान होगा, वो अपनी इंटेलिजेंसी से, वो अपनी काबिलियत से उस चीज को पालना चाहेगा। मुझे ये समझ है इसके बारे में। थैंक यू सर। जी थैंक यू और वेरी मच कुछ? सर। जी फर्स्ट केस में आवाज आ हम रही है सर? जी हाँ नमस्ते। बोलिए। हाँ जी हाँ जी, मैं एक बोलूं एक कर। क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोलिए आप बोलिए। सर, वो जेलसीमियम जो आपने जिससे हेल्ड डिजायर लिया, जी उससे मैंने क्लिंगिंग सोच करके जेलसीमियम किया था सर। तो क्लिंगिंग और हेल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस हाँ बता हाँ, दीजिए। बस क्लिंगिंग में होता है, हेल्ड तो कहीं भी हो सकता है। क्लिंगिंग जो होता है पेशेंट की मन के हिसाब से, वो अपने फादर जी को, मदर को, किसी को भी करता है। जो हेल्ड तो जो भी सहारा मिले, जैसे हम डगमाते हैं किसी को भी पकड़ लेते हैं, वो हेल्ड है। और उसमें आराम मिलता है, थोड़ा आदमी कंफर्ट फील करता है, वो हेल्ड डिजायर। पहले हेल्ड डिजायर है, फिर हेल्ड बीइंग एम्बुलेट है, ऐसा। हेल्ड आप किसी को भी कर सकते। जब आप गिरने लगोगे आप सोचते नहीं है कि मम्मी को पकड़ूं या पापा को पकड़ूं, वो पास में होगा नहीं। जो भी पास में है, कुर्सी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई दीवार भी हो सकती है, कुछ भी। ओके सर, मतलब क्लिंगिंग वो जी अपने जान पहचान वालों को ही करेगा हाँ हाँ, क्लिंगिंग। करेंगे उसमें सोच के होगा उसमें। हाँ, जहां पर ओके उसको कंफर्ट मिलने की पक्की, वही वहां पर भी वो हमारा लाइट डिजायर पॉजिटिवली भी वहां पर थोड़ा सा लग सकता है कि उसको वहां पर कुछ मिलने की संभावना पक्की है कि पापा ही मुझे कर लेंगे, वो पक्का है उसको वहां पर, तो इसलिए। क्लिंगिंग ओके, जी और हेल्ड वो क्लिंग, किसी को भी जी कर। ओके, हाँ, हेल्थ तो किसी थैंक को भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू तो सर। आज की मीटिंग हम लीव सर करें। तो हाँ जी, नमस्ते सर। जी जी हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर पूनम बत्रा बोल रही हूँ। जी जी डॉक्टर मैंने साहब, पेट कैसे हो ज्वाइन आप? किया है, मैं ठीक हूँ। मैं इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊँ, इसमें हेल्ड डिजायर और क्लिंगिंग में आपसे ही सीखा है वैसे। इसमें हेल्ड डिजायर का मतलब है कि कोई उसको पकड़ के रखे। जैसे हाँ कोई वो तो है बीमार ही। होता है तो बोलेगा मम्मी हाँ मुझे वही, पकड़ के रखो, और पहले क्लिंगिंग डिजायर में वो आएगी। खुद पकड़ेगा, है ना? हाँ नहीं, क्लिंगिंग में हाँ वो खुद क्लिंगिंग में खुद खुद क्लिंग पकड़ेगा, करेगा, वो खुद तो बता ही दिया ना पहले कि वो चाहता है कि उसके साथ वो खुद चिपकता है, मदर के साथ, फादर के साथ, वो खुद चिपकता है। हेल्ड डिजायर जो पहले डिजायर आती है, फिर जब उसमें वो ठीक होता है तो उसको वो वहीं रहना पसंद करता है। हेल्ड बीइंग एम्बुलेट होता है। ठीक है जी। हाँ और ठीक है डॉक्टर साहब, शुड आई लीव? पेशेंट बाहर बैठे हैं, उनको थोड़ा देख के जाऊंगा मैं। थैंक ओके यू सो मच। ओके, हाँ वो सब आपने सब अपने विचार वहां भेज देना जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स थैंक एवरीबॉडी। हाँ, आई एम लीविंग नाउ। जी।